حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کے بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط بات ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ لمبی دوستی کے لیے 2 باتوں پر عمل کرنا، ایک اپنے دوست سے غصے میں بات مت کرنا، اور دوسرا دوست کی غصے میں کہی بات کو کبھی دل پر مت لینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس کو جتنا قریب سے جانو گے اس سے اتنا ہی دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ دوسروں کی زندگی میں آگ لگانے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی پر توجہ دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام باقی رہے تو آپ اپنے بچوں کو اچھا اخلاق سکھائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، چھین کر کھانے والوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا ہے اور بانٹ کر کھانے والے کبھی بھوکے نہیں رہتے۔ زندگی صدیوں، سالوں، مہینوں یا دنوں میں نہیں بدلتی ہے، زندگی اس لمحے میں بدل جاتی ہے جس میں آپ زندگی بدلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب پیر کھینچنے والے اچانک پیر دبانے لگیں تو سمجھ جائیں کہ دل میں کچھ کالا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعا لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیونکہ کیا خبر کہ کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں کبھی مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ، اور نمبر 3 غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ محنت کا پھل اور مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ کو ہر ایک آنسو اس ہزاروں سمندروں سے زیادہ بہتر ہے جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہارے پلکوں سے بہتا ہے۔ دعاؤں کے جواب فوراً نہیں ملا کرتے ہیں، پریشان نہ ہوا کرو، اللہ انتظار کے ذریعے اپنے بندے کو آزما کر ہی اس کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارا مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ تم نماز کے لیے وقت نکال لو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ جس چیز پہ دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے، ہمارا صبر، ہمارا توکل اور ہمارا یقین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، پریشان رہنا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچانے کی امید رکھتا ہے، اس کی امید جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल काम यह है कि तुम उस काम को छोड़ दो जिसे अल्लाह ने नापसंद फरमाया है। आगाज़ में तुम्हारा सब्र आजमाने के लिए कुछ चीज़ें मुश्किल ज़रूर बनाता है, मगर इख्तिताम वह हमेशा वैसा ही करता है जैसा तुम चाहते हो। दिलों के हाल सबसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। तुम्हारे खामोश सजदे और तुम्हारी अनकही बातें खुदा के यहाँ बहुत ख़ास मकाम रखती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, और जब तुम पूरे दिल से खुद को खुदा के सुपुर्द कर दोगे तो तुम देखोगे कि कायनात की हर चीज़ तुम्हारे हक़ में होगी। जो लोग कहते हैं कि सच्चा इंसान ज़बान का कड़वा होता है, उनको बता दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्चा और मीठे इखलाक वाला कोई नहीं था। अल्लाह से मांगने के बाद कबूलियत की घड़ी होती है और हम नाउम्मीद हो जाते हैं। हो सकता है यही वह कबूलियत की घड़ी हो और तुम्हें वह सब मिल जाए जिसे पाकर तुम खुश हो जाओ। एक बार फिर हिम्मत करके उससे मांग लो, वह देने पर कादिर है, वह तुम्हें ज़रूर अता करेगा। वह तो बिन मांगे इतना देता है और तुम मांग कर भी उससे ना उम्मीद क्यों होते हो। इतने दर्द के बाद भी अगर तुम सब्र कर रहे हो तो यकीनन तुम्हें अज्र के लिए चुन लिया गया है। तमाम बेहतरीन फ़ैसले तुम्हारे रब की तरफ से हैं, और देखना तुम्हारी ज़िंदगी में भी बेहतरीन फ़ैसला तुम्हारे रब की तरफ से ही होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाता है। अपने दिल की कैफियत अल्लाह को बताया करें। आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं, आप यकीन करें वह बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से आपके दिल को सुकून उतरेगा। बेशक वह दिलों का हमराज है। यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा ली है, इसीलिए तो तुम्हारा दिल इंतज़ार से नहीं थक रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, सबको छोड़कर मुझ पर एतबार कर लो, मुझ पर यकीन करो, मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। अपने मनपसंद चीज़ को पाने के लिए अल्लाह को उसके मनपसंद अंदाज से राज़ी करना पड़ता है। क्या पता कि तुम्हारा सब्र ही अल्लाह को राज़ी कर ले और तुम्हें वह सब मिल जाए जिसके लिए तुम रो रो कर दुआएं करते हो। दुआएं तो नसीब से मिलती हैं, और फिर वह दुआएं कैसे रद्द हो सकती हैं जो अल्लाह ने खुद तुम्हारे दिल में डाला है। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह है कि वह बड़ा ही दरगुजर करने वाला है। मैंने कहा, मुझे लगता है अल्लाह मुझसे नाराज़ है, तो जवाब आया कि अल्लाह जिनसे नाराज़ होता है वह यह फ़िक्र ही कहाँ करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे प्यारा वह शख्स है जो उसकी अता की हुई नेमतों में नाशुक्री नहीं करता। मांगो सिर्फ़ अल्लाह से, क्योंकि अल्लाह के सिवा इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इंसान से कुछ छीन ले या अता कर दे। तुम जो चाहते हो मांगो अल्लाह से, अल्लाह ही देगा और ज़रूर देगा। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाज़ा लगाना है तो यह देखें कि वह हंसता किस बात पर है। अपनी बेइज्जती का बदला इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जब आपकी उम्र ज़्यादा हो गई हो तो कोई भी आपको काम पर नहीं रखना चाहता है। कामयाब लोग कभी उनके पीछे नहीं चलते हैं जो अपना रास्ता भटक गए हों। नाराज़ होने वालों को मनाने में देर ना करें, लेकिन बेजार हो जाने वालों पे अपना अल्फाज ज़ाया मत करें। जो लोग अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करते हैं,
खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। ज़िंदगी में एक ऐसे शख्स का होना बहुत ज़रूरी है जिसको दिल का हाल सुनाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत न पड़े। बानो कुद्सिया लिखती हैं कि माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, पर दुनिया में हर ज़रूरी बात हम अपनी माँ से ही सीखते हैं। औरत अपनी उम्र के बारे में तब झूठ बोलना शुरू कर देती है जब उसका चेहरा सच बोलना शुरू कर देता है। लोगों को जज करना छोड़ दें। आप नहीं जानते कि कोई अपने अंदर कैसा जंग लड़ रहा है। हम नंगे सर घूमने वाली लड़की को शर्मिंदगी का बाइस समझते हैं, पर उस बेटी को देखने वाले उस लड़के को कुछ भी नहीं कहते। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिज़्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। ज़िंदगी ऐसे जियो कि किसी के ज़िंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी के दुआओं का हिस्सा ज़रूर बनो। दिल से उतर जाने वाले वह लोग होते हैं जो सामने खड़े भी रहें तो नज़र नहीं आते। ज़िंदगी में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज़्यादातर लोग दिखावा करते हैं। मोहब्बत कभी कभी यकीन की सबसे ऊंची सीढ़ी से इतना ज़ोर का धक्का देती है कि इंसान सारी ज़िंदगी किसी पर भरोसा नहीं कर पाता। बदला लेने वालों से नहीं, बदला सह जाने वालों से डरो, क्योंकि उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द पहुंचा दिया जाता है। मोहब्बत का हो जाना या मोहब्बत का मिल जाना अहम नहीं होता है, मोहब्बत को ज़िंदा रखना और इज़्ज़त देना अहम होता है। अगर लोगों को इज़्ज़त देना और माफ़ करना तुम्हारी कमज़ोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। कुछ लोग बर्दाश्त की उस इंतहा पर होते हैं जो अपने दुख सुनाते हुए यूं हंसते हैं कि सुनने वाला रो पड़े। हर बुज़ुर्ग की बात में हिकमत मत ढूंढें, कुछ अहमक लोग भी बुज़ुर्ग हो जाते हैं। यह 4 गुनाह ऐसे हैं जिनको करते वक्त इंसान ईमान से निकल जाता है। नंबर 1, जिनाकार का जिना करते वक्त। नंबर 2, शराबी का शराब पीते वक्त। नंबर 3, चोर का चोरी करते वक्त। और नंबर 4, कातिल का नाहक कत्ल करते वक्त।